So today we have to start from here that purchasing power parity as a theory of exchange rate determination. It is based on law of one price. In law of one price, we saw that when goods are expensive in one market and are cheaper in some other market, then people will start goods arbitrage. Good arbitrage means they will buy things from the market where these are the cheaper and will resell in the market where their prices are higher. And at the end, prices will be same in all markets. And law of one price will hold. और सब मार्केट्स में प्राइसेस इक्वल हो जाएंगी गुड्स आर्बिट्रेज के नतीजे में और ये कि इसमें हमने अज्यूम किया देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एंड देयर आर नो डिफरेंशियल टैक्सेस. Purchasing power parity theory, which is a theory of exchange rate determination, also depends on law of one price. But इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि लॉ ऑफ वन प्राइस में ये है कि आप गुड्स आर्बिट्रेज के नतीजे में जो चीज़ चेंज होती है वो प्राइसेस है. लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में आप जब दो कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेज के रिजल्ट में जो चीज़ें चेंज होंगी उसके नतीजे में वो क्या होगी, वो एक्सचेंज रेट होगा बजाय प्राइसेस चेंज होने के. ये इसमें डिफरेंस है. द परचेजिंग parity relationship becomes a theory of exchange rate determination by introducing assumptions about the behavior of importer and exporter in response to changes in the relative cost of national market basket. इसमें हमने डिफरेंट किसी एक सिंगल चीज़ की एग्जांपल देने के बजाय मार्केट बास्केट ऑफ गुड ली थी. यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड फॉर दैट मार्केट बास्केट ऑफ गुड और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको आप जनरल प्राइस लेवल और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट भी कह सकते हैं वो कि एक सेम बास्केट ऑफ गुड शुड हैव द सेम प्राइस इन द different countries. If a market basket containing many different goods and services cost more in one market than another, we should likewise expect profit-seeking individual to buy the cheaper goods in the low market and resell them in higher market. If the law of one price leads to equalization of the prices of goods between two markets, then it seems reasonable to conclude that purchasing power parity describes the equality of market basket across the countries should hold. Ab- But what is the difference here is that in the law of one price story, goods arbitrage in a particular product was expected to affect the markets. But in the purchasing power parity theory, is that arbitrage occurring across the range of goods and services in the market basket will affect the exchange rate rather than the market prices. और ये होगा किस तरह से कि अभी हमने पीछे जब डिटेल में पढ़ा तो परचेज अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी the price ratio of the market basket in local currencies in two countries should be equal to the exchange rate between the two currencies. अगर उनकी प्राइसेस वैसे इक्वल हो तो उनकी जो प्राइस रेशियो है इधर पैसों और डॉलर में दी हुई है इट शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ पैसों के मार्केट बास्केट की जो प्राइस डॉलर में है और जो मार्केट बास्केट की प्राइस आपकी लोकल करेंसी है चाहे वो सिक्कों की यहाँ बात है पाकिस्तान के रुपीज़ ले लें उसकी जो रेशियो डॉलर से है वही उनकी आपस में करेंसीज की रेट की या स्पॉट रेट की रेशियोज जो सी हैं वो होनी चाहिए. सो वी saw that spot exchange rate is equal to price ratio of market basket of goods in pesos divided by market basket of goods in dollars. ये इक्विलिब्रियम है जो होल्ड करता है व्हेन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी होल्ड्स. अब अगर हम ये किस तरह से इक्विलिब्रियम मीन कि सेल्फ रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम है इसमें हाउ इट विल बी एडजस्टेड in this theory. Exchange rate is our endogenous variable and if it is not in equilibrium other variables will adjust and exchange rate will be equilibrium exchange rate will be restored. For example, we assume that exchange rate is lower than the equilibrium exchange rate which is determined by the purchasing power parity theory, then we may write it that exchange rate between peso and dollar as spot exchange rate is less than the price ratio of the basket of goods in terms of pesos divided by the price ratio in terms of dollar. इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आपकी जो बास्केट ऑफ गुड्स की कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स है ये प्राइस है. इन्होंने बार बार इसे कास्ट कहा है जिसे मैं प्राइस कह रही हूँ बट इट्स सेम थिंग.
तो आप इस लोअर टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई बाय करें कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो इट इज लेस देन कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैसो। तो इसका मतलब क्या है कि current exchange rate that prevails on the spot markets, it is less than the ratio of the market basket cost in Mexico and United States. It is also less than the purchasing power parity exchange rate. The right side of the expression is rewritten to show that cost of the market basket in the USA evaluated in terms of pesos is less than the cost of the market basket in the Mexico, also evaluated in pesos. Thus, it is cheaper. It is cheaper to buy the market basket in USA, or in other words, it is more profitable to sell the items in the market basket in Mexico. जब मेक्सिको में अगर आपकी प्राइस ज़्यादा ज़्यादा है तो सेलर्स जो हैं इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो अपनी गुड्स जो सी या एक्सपोर्टर जो से मेक्सिको में फरोख्त करें क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस हायर है। अगर आप एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है उसको भी सामने रखें तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इसको किस तरह एक्सचेंज रेट से रिलेट करती है कि अगर आपने जो गुड्स हैं stress that the cheaper basket in the USA will lead to an increase in demand for goods in the United States market basket by Mexico क्योंकि लोग ये चाहेंगे कि मेक्सिको में प्राइसेस ज़्यादा तो हम उसे सेल करें जो मेक्सिको में लोग हैं उनको ये होगा कि यूएसए की जो बास्केट ऑफ गुड्स है सेम चीज़ों की वहाँ पे चीपर मिल रही है तो हम क्यों ना उसे प्रेफर करें हमने अज्यूम किया कि इसमें कोई एक्सचेंज रेट नहीं है कोई सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर यूनाइटेड स्टेट डॉलर ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्योंकि आपने यूएसए से अगर वो बास्केट खरीदनी है और मेक्सिको में उसे रीसेल करना है तो आपको यूएसए से खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए होंगे इस तरह आप क्या करेंगे कि डॉलर्स की डिमांड को इंक्रीज करेंगे डॉलर्स आर नीडेड बिकॉज परचेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट गुड्स रिक्वायर यूनाइटेड डॉलर्स Alternatively, United States exporter will realize that goods sold in United States can be sold at higher prices in Mexico. If these goods are sold in pesos, the USA exporter will want to convert the proceeds back to dollar कि अपनी चीज़ें वो मेक्सिको में जाके बेचेंगे यूएसए से खरीदेंगे यूएसए से खरीदने के लिए उन्हें डॉलर चाहिए होंगे मेक्सिको में जब वो बेचेंगे उनसे उन्हें जो करेंसी मिलेगी वो पैसोज होगी उन पैसोज को दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरफ वो डॉलर की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरी तरफ वो डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट जो लोअर था it will start increasing. We may explain this with the help of given diagram. इस डायग्राम में आपने एक्स एक्सिस पे डॉलर की सप्लाई ली है वाई एक्सिस पे आपने करंट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट ली है अब आप ये देखें कि इक्विलिब्रियम स्पॉट जो एक्सचेंज रेट है उससे लो रही है हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो पे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो एक्सचेंज रेट सजेस्ट करती है उससे कम है अगर उससे कम है तो क्यों कम है कि हमने ये कहा है कि यूएसए में वो गुड्स सस्ती मिल रही है उनकी प्राइसेस कम है और मेक्सिको में ज़्यादा है अब जब लोग यूएसए से वो चीज़ें खरीदना चाहेंगे तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज करेगी और डिमांड का विल शिफ्ट फ्रॉम डी एस टू डी एस डैश और जब वो पैसों दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर की सप्लाई जो सी है इट विल उसको दोबारा से जब उसको कन्वर्ट करेंगे सॉरी इसको जब रीसेल करेंगे परचेज करना चाहेंगे यूएसए मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स देन डिमांड का शिफ्ट टू द राइट इसी तरह मेक्सिको में जो लोग हैं वो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो दे आल्सो नीड डॉलर सो डॉलर की सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज एंड एज ए रिजल्ट एक्सचेंज विल ई टू जो चीज़ रेड कलर से अंडरलाइन की है वो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है और बाकी जो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो विदाउट डायग्राम है उसको मैंने हाईलाइट किया है
Demand and supply will cause an increase in the value of dollar and thus the exchange rate will rise. As long as the United States market basket remain cheaper, जब तक वो प्राइसेस उधर आपको कम लगती रहेंगी, जब तक आपका इक्विलिब्रियम रीस्टोर नहीं होता, तब तक लोग यूएसए से वो गुड्स परचेज करके मेक्सिको में रीसेल करते रहेंगे। जब तक वो यूएसए से परचेज करते रहेंगे, उसको परचेज करने के लिए डॉलर की डिमांड होगी। Excess demand for the dollar will persist and the exchange rate will continue to rise. The pressure for change ceases once the exchange rate raises enough to equalize the cost of the market basket between par parity theory holds. Now we see what happens if the exchange rate is higher than the equilibrium exchange rate, which is determined by the purchasing power parity theory. In this situation, spot exchange rate is higher than the ratio of the price baskets, cost of basket of goods in Mexico to the cost of basket of goods in USA. When it is higher than, if you multiply or you take this term to the left side, it means that the cost of baskets of goods in term of dollar multiplied by the spot exchange rate mean क्या होगा, पैसों में convert भी करते हैं तो it is higher than the cost of basket of goods in terms of pesos. अगर ये higher है तो it's mean कि USA में वो goods expensive है और same goods are cheaper in the Mexico. अगर वही गुड्स मैक्सिको में चीपर है और जैसा कि हमने अज्यूम किया कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स विल वर्क in such a way that exchange rate will restore to the equilibrium exchange rate which is determined by the purchasing power parity theory. Or how they will work, they will buy those cheaper goods from the Mexico and will export it to the USA, and they will do it until the prices are equal in two countries. Exchange rate restores to the equilibrium exchange rate. अगर प्राइसेस को आपने सेम ही रहनी है, दोनों कंट्रीज में जो प्राइस लेवल चल रहा है वो सेम ही है, तो एक्सचेंज रेट विल एडजस्ट टू bring the equalization and to stop or to bring it to end the goods arbitrage between the two countries. अब ये जो prices में difference है, it should lead the consumer in the USA or importing firm to purchase less expensive goods from Mexico, and to do so they will raise the supply of dollar इन द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है वो गुड्स खरीदने के लिए, अब उन्हें डॉलर की जरूरत नहीं है, तो अगर उनके पास डॉलर होंगे दे विल कन्वर्ट इट टू द पैसों, सो द सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, so the supply curve of dollar will shift to the right as shown in the figure below. You may check it here. And at the same time, Mexican consumer would refrain from purchasing the more expensive USA good. अब Mexican consumer जो उनसे उन्हें USA की गुड्स जो सी एक्सपेंसिव और खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें गुड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो इट विल लीड टू रिडक्शन इन द डिमांड फॉर द डॉलर, डॉलर की डिमांड भी जो सी कम हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. सो हमने ये क्या अज्यूम किया था कि बिफोर इक्विलिब्रियम आपका एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज एंड सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट. ये सप्लाई क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब मैक्सिकन एक्सपोर्टर्स मैक्सिकन गुड्स खरीद के यूएसए में सेल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें डॉलर की नहीं बल्कि मैक्सिकन करेंसीज की ज़रूरत है. और इसी तरह मैक्सिकन जो इम्पोर्टर या कंज्यूमर हैं वो चूँकि यूएसए की गुड्स एक्सपेंसिव है वो नहीं खरीदना चाहते, तो इसलिए डॉलर की डिमांड भी कम होगी और कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट दिस पॉइंट. Higher quantity of dollar is in the market but at the lower spot exchange rate. और ये exchange rate तब तक डिक्रीज होता रहेगा E1 से E2 तक, जब तक आपका परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. एक्स्ट्रा डिमांड pesos will continue as long as goods and services remain cheaper in Mexico. However, as the peso appreciate, direct with the passage of time, जब आपका exchange rate कम हो रहा है तो डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है और आपका पैसो अप्रिशिएट हो रहा है, तो cost of Mexican goods rises relative to the USA goods. The process stops once the purchasing power parity exchange rate is reached and market basket costs the same in both markets.
इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में एक्सचेंज रेट चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि हमने ये पहले शुरू में अज्यूम किया है कि जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो सेम ही रहनी है, उसमें गुड्स की क्वांटिटी भी सेम ही रहनी है, सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है वो या एक्सचेंज रेट है या प्राइसेस है। जब प्राइसेस में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं वो सेम नहीं है। Since the price level changes represent the inflation rate, this means that differential inflation rate will induce exchange rate changes according to the theory. तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था जब हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज रेट जो है वो किस चीज़ से इंड्यूस हो रहा है कि दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट्स के हैं। अब जिस कंट्री में प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और जिस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट कम है उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी। कैसे? इफ वी इमेजिन दैट अ कंट्री बिगिंस विद परचेजिंग फॉर पैरिटी, देन द इनइक्वालिटी गिवन इन इक्विलिब्रियम स्टोरी 1 ये है कैन अराइज, जो कि मतलब करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट में आप बास्केट ऑफ गुड्स की डॉलर में जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो वो कम है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इफ़ द प्राइस लेवल राइजेज इन मैक्सिको, इफ़ द प्राइस लेवल फॉल इन यूएसए, इनमें से कोई एक वजह हो सकती है। और इफ़ मैक्सिकन इन्फ्लेशन इज मोर देन यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन। So according to the theory, the behavior of importer and exporter would induce a dollar appreciation and peso depreciation. So we may say that an increase in prices relative to the changes in other country prices, आप यहाँ पे prices मैक्सिकन prices बजाय पाकिस्तानी prices भी लिख सकते हैं, will cause the dollar to appreciate and the pesos to depreciate. पाकिस्तान में आप इन्फ्लेशन और डॉलर की प्राइस देख ही रहे हैं। इसके पीछे ये सारी स्टोरी आप जो सी आप एक दफ़ा दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन रेट की वजह से भी आपकी करेंसी जो सी है वो डेप्रिशिएट होती है। So at the end, we may say that an increase in Mexican prices relative to the changes in United States prices are more rapid inflation in Mexico than in the USA will cause the dollar to appreciate and the peso to depreciate, according to the purchasing power parity theory. More rapid inflation in United States would cause the dollar to depreciate while the peso would appreciate. ये हमने जो स्टैटिक वर्जन पढ़ा था। नाउ आफ्टर दिस we will start dynamic version of purchasing power parity theory, and there are some other issues or problems. We will start it tomorrow. You may ask any question from today's lesson.